السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ عاقب گلف پیجن نیوز سیالکوٹ کی طرف سے۔ آج ہم ایسی شخصیت کے پاس حاضر ہوئے ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ تعارف تو ایک رسم ہے، ورنہ جیسے ریکارڈ انہوں نے بنا دیے ہیں، اگر تعارف کرنے لگ پڑے تو الفاظ کم رہ جائیں۔ ہم بات کر رہے ہیں آپ سب کے جان، فخر پنجاب چیمپئن استاد مٹھو لالی صاحب۔ جی استاد محترم، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ جی وعلیکم الحمدللہ جی، ٹھیک ٹھاک۔ استاد محترم، سب سے پہلے تو ہمارے بھائی ہیں جو چودھری زبیر مرالی صاحب، جی جی، ان کو ہم یہ انٹرویو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا بولیں گے؟ میرے بھی وہ چھوٹے بھائی ہیں، مطلب میں کافی عرصے سے انٹرویو والے کال کرتے، میں انٹرویو نہیں دیتا، تو تھوڑا سا مناسب نہیں سمجھ، مگر زبیر بھائی نے بہت کال پہ کل، اور آپ کی سفارشیں بہت آئی ہے کہ ان کو انٹرویو لازمی دینا۔ میں کہا جی ٹھیک ہے۔ استاد جی، پبلک کی ڈیمانڈ ہے تو پھر جی وہ جی، نہیں آپ اس کے ہمارے لیے بھائی ہیں، پبلک ہمارے محبت کرتی ہے، اللہ پاک ان کو بھی سلام رکھے، آپ کو بھی سلام رکھے جی۔ استاد جی، استاد مٹھو لالی سے چیمپئن استاد مٹھو لالی کا سفر کیسا رہا آپ کا؟ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جتنا اس کا شکر ادا کیا جتنا کم ہے جی۔ استاد جی، کون سے سیزن میں آپ چیمپئن ہوئے تھے، چیمپئن پنجاب؟ میں جیٹھ میں ہی ہوں زیادہ، کون سے سیزن؟ 19 چیمپئن ہوں، 20 چیمپئن ہوں، 22 چیمپئن ہوں، 24 چیمپئن ہوں، ایک دفعہ اسو چیمپئن ہوں، ایک دفعہ بیساکھ چیمپئن ہوں۔ استاد محترم، کبوتر بازی میں قدم کون سی سن میں رکھا تھا آپ نے؟ مجھے بچپن سے شوق ہے، بچپن سے بازیاں وغیرہ جو ہو رہی ہیں؟ بازیاں میرے خیال میں پتہ نہیں 2007 میں پراپر شروع کی تھی میں نے۔ 2007 سے؟ جی جی، 7 سے۔ اچھا استاد جی، سننے میں آیا کہ آپ نے اپنے علاقے میں سے کسی کو جیتنے نہیں دیا ہے، لوگ جی آپ کو الحمدللہ، حصہ نہیں دیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا بولیں گے؟ نہیں الحمدللہ، آج تک ضلع میں ہمارے ضلع چنیوڑ میں نا آج تک کوئی بازی میں نے جیتا، ایک تو برابر ہوئی تھی جی تو جیتا کوئی بھی نہیں آج تک۔ استاد جی، شاگرد آپ کے کتنے ہیں؟ نمبر تو نہیں ڈالے یار، اندازاً پھر رف آئیڈیا ہونا۔ کافی ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ شاگرد آپ کے بہت زیادہ ہیں، ہاں جی الحمدللہ۔ لیکن ایک چیز اس میں سے نظر آ رہی ہے کہ پنجاب لیول تک ان میں تقریباً 5-6% ہی ہے جو پرفارمنس دے رہے ہیں، زیادہ تو وہ پرفارمنس کیوں نہیں دے پا رہے ہیں؟ نہیں، اصل میں چکر پتہ کیا ہے جی، جی شاگرد زیادہ بھی آ رہے ہیں، پنجاب میں 10-12 چھتیں شروع ہوئی ہیں، جی ٹھیک ہے۔ اصل میں پتہ کیا بات ہے، جو انسان محنت خود کرتا ہو نا، محنت کرتا ہو، بے شک شاگرد آپ کا 1000 بھی ہو نا، جس نے خود محنت کرنی ہے، کبوتر کو سمجھتا ہو، کبوتر اس نے بنائے ہو، ٹھیک ہے، تو استاد گائیڈ ہی کر سکتا ہے نا کہ یہ راستہ ایسے کرنا ہے، یہ ایسے، یہ دانہ ایسے ڈالو، پانی ایسے پلاؤ، یہی ہوتا ہے نا مطلب یہ استاد سے سیکھنا ہوتا ہے، دوائی ایسے لگاؤ، تو جو پراپر شوق میں ہوتا ہے نا وہی یہ کر سکتا ہے۔ استاد جی، جو لاکھے کبوتر ہیں اس کی ہسٹری کیا ہے؟ یار یہ اتفاقاً ہی کبوتر بنے ہوئے ہیں، کوئی ان کی اتنی بڑی ہسٹری نہیں ہے، یہ ادھر ساتھ ہی 1.5 کلومیٹر نا، ادھر اسی علاقہ میں نا ایک کبوتری اڑی تھی لاکھی، اور ایک کبوتر تھا علی والا بٹیرا ٹائپ کبوتر تھا۔ اچھا، یہ بات ہے 2010 کی، تو اچھا بڑی گرمی تھی، بہت زیادہ گرمی تھی، تو وہ پورا علاقہ یہاں پہ چنیوڑ 12-11 سے اوپر کوئی نہیں جاتا تھا، اور وہ جو لاکھی اور وہ بٹیرا علی والا کبوتر تھا نا، جی مکس ہوا تھا کبوتر، یہ دونوں 5-6 5-4 مطلب یہ 46-47 میں بیٹھتے تھے، بہت ہوتی صبح ہی لوگ نا وہ اپنی چادر وغیرہ لے کر نا اس کو اوپر کپڑا کر کے باہر نکلتے، اتنی گرمی ہوتی، لو چلتی تھی، تو یہ جوڑی یہ بیٹھتی تھی، تو میں اس وقت پڑھتا تھا، تو میں ادھر ہی شوق کرتا تھا اس چھت پہ، وہ اب میرے شاگرد ہے انصر شاہ، سید انصر شاہ وہ شاگرد ہے، تو اس کی چھت پہ یہ کبوتر اڑے تھے، تو میں نے جب وہ بازیاں اڑ گئی، ہم بازیاں جیت گئے، یہ جوڑا میں نے لگا دیا ادھر، صحیح ہو ایسے نا اڑایا جوڑا تھا، میں نے کہا یہ جوڑا لگاؤ اور مجھے بھی ایک بچہ دینا، صحیح ہو وہ جوڑا میں پھر جوڑا لگا کے آ گیا، بھول گیا، تو پھر اس کے بعد میں اپنا یہ جوڑا ایک بچہ میرے پاس آیا، اس بچے سے میں نے یہ سارے کبوتر بنایا۔ صحیح ہو جی جی، وہ بچہ بھی میرے پاس چیمپئن ہوا تھا۔ ماشاءاللہ۔ جی جی استاد جی، جب آپ پہلی دفعہ چیمپئن پنجاب ہوئے تھے، جی جی، اس میں زیادہ تر کون سی نسل جو ہے نا وہ اڑی تھی؟ اس میں 4 سے 5 کبوتر لاکھی اڑے تھے، اچھا 19 میں 4 سے 5 لاکھی اڑے تھے، اور ایک کبوتر ٹیڈی سا کبوتر تھا، ٹیڈی گراس تھا، وہ میرے شاگرد نے نا یہ شیخ کو پورے سے بھیجا تھا، وہ کبوتر اڑا تھا، اور نرالی کبوتری اڑی تھی، اور یہ جو ہمارا ڈبہ کبوتر ہے نا، ڈبہ کبوتر، جی ان میں سے
दो, मतलब ये जो आखिरी अदालत कबूतर आजकल बने हुए हैं ना, जी जी। इनमें से 2-3 कबूतर उड़े थे। तो उस्ताद जी आपका पसंदीदा हरीफ कौन सा है जिसके साथ मुकाबला करके वो आपको टफ टाइम देता हो और मज़ा आता हो? पंजाब में सारे अच्छे शौकीन हैं, सारे अच्छा शौक करते हैं। लेकिन कोई एक बताएं ना जो जिससे मुकाबला करके मज़ा आता हो, मतलब टफ टाइम मिलता हो उसकी तरफ से। अच्छे, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, काफ़ी अच्छा टाइम खेल में मज़ा आता है खेलने का। लाहौर आप गए हैं, जी जी वहाँ का आपने शो किया है, जी। मौसम को लेके, एनवायरनमेंट को लेकर, जी जी। कैसा क्या कहेंगे, कैसा था उधर का? कुछ भी नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। कुछ फर्क मैंने तो नहीं? सर्दी देखी वहाँ पे, सर्दी गर्मी देखी थी? देखी नहीं। शायद वो कहते हैं कि इस साल ज़्यादा हो गई थी, हो सकता है उनके कहने के मुताबिक इस साल ज़्यादा सर्दी रही हो। अच्छा। मतलब जो बात होती है ना कि कहते हैं कि फलां इलाके में बहुत होती है गर्मी, वो ऐसी बात तो नहीं देखी कोई। सही ठीक है है। उस्ताद जी, अगर ये बाजियाँ मनसूख ना होती तो क्या रिज़ल्ट होता आपकी नज़र में? रिज़ल्ट देखिए जी, 5 बाजियाँ रह गई थी बकाया। जी। पहली 2 फड़के हमसे कबूतर थोड़े से ना, बंदा वो लालच कर जाता है ना, जब बंदा लालच करता है ना कि यार मैं और आगे बढ़ूँ, वो बढ़ने के चक्कर में कभी कभी आप नुकसान भी कर बैठते हैं। रिवर्स भी हो गया था। अब वो कबूतर हम लालच के चक्कर में अपने कबूतर थोड़े से ख़राब हो गए थे, बल्कि मुंतज़िर मेहंदी के पास अपना मेरा भाई है, मुझसे थोड़ा गपशप भी होती रहती थी, फड़कों में भी होती रहती थी, जग्गे के साथ सबके साथ गपशप होती थी, भाइयों वाला माहौल था। उनका बंदा एक हमारे पास ही होता था, नुमान नोमी। अच्छा। नुमान नोमी, वो जो इजाज़ खान है ना, जी जी। उसका भाई है वो। सही हो गया। वो उस दिन मेरे पास ही था फाइनल परवाज़ पे। इन्हीं 7 कबूतरों ने 96 घंटा बनाया था। माशाल्लाह। इन्हीं जो बाजी में डाले थे ना, इन्हीं 7 कबूतरों ने 96 घंटा बनाया था। क्या बात। मतलब ये तो परवाज़ हमने वो नोट की ना, परवाज़ लास्ट परवाज़ वाली, तो ये जो इजाज़ खान है उसका भाई भी उस दिन उधर ही था। मतलब भाई मुंतज़िर के साथ ही होते हैं ना वो, जी जी। उनको उनसे भी ईमानदारी से पूछा, वो कहेंगे कबूतर ऐसे बैठते थे। मतलब वो कुछ हमारी ज़ाती थोड़े से हमसे कबूतर पहली 2 परवाज़ें ख़राब हो गई कबूतर, कि हम लालच करके कि लंबे कबूतर उड़ाएं। जी जी। ठीक है, तो मतलब थोड़ा जो सा आप छेड़छाड़ी में फ़र्क आ गया। जी। तो फिर वो तीसरी फड़क तक एक दिन गर्मी हुई है वहाँ पे। तीसरे दिन कोई 6 बाजियों में गर्मी नहीं रही, 39-40, और एक दिन 43-44 पड़ी है। तो वो तीसरा दिन था। मतलब कि आपके लालच की वजह से कह सकते हो। यार अब जो खेलता है ना, गलतियाँ भी वही करता है। ये तो है। जो खेल में जो बंदा खेलेगा नहीं, वो गलतियाँ कैसे करेगा? जो खिलाड़ी होता है गलतियाँ भी वही करता है, और गलतियों से सीखता भी वही है। वैसे उस्ताद जी माशाल्लाह आपने लाहौर जाके ना जी। इस कबूतरबाजी को ना पहली दफ़ा हमने देखा था कि वर्ल्ड कप वाले सीन बना दिए थे। लोग जोक दर जोक लाहौर जा रहे थे शौक देखने के लिए। अपने शौक को बड़े ही अपना एक शोहरत मिली थी और बड़ा अच्छा जा रहा था। बस फिर शौक जब पूरा ना हो सका, बाकी क्या कह सकते हैं, अब आपके सामने ही सारा कुछ। जी उस्ताद जी, 2 दिन पहले हमने इंटरव्यू किए थे जगह खोकर साहब का। जी जी वो फरमा रहे थे कि मेरा बेहतरीन जो हरीफ है ना वो मिट्ठू लाली साहब है। जी, उनकी मोहब्बत है जी, उनकी मेहरबानी है जी। वो कह रहे थे, मैंने उनसे फिर सवाल किया क्या दोबारा ऐसा मेला सजने को मिलेगा लाहौर में, तो क्या ऐसा सीन हो सकता है? देखिए, जो घर छोड़ना होता है ना, ये बहुत जी। मुश्किल बात होती है। जी जी। हमने उनके साथ की थी ज़ुबान। जब इंसान, हम समझते हैं ज़ुबान करके अपना नुकसान, उसमें नुकसान और फ़ायदा वो बंदे को पूरी करनी चाहिए। ज़ुबान के पीछे सारा काम होता है जी जी, ना। ऐसे ही। हमने उनके साथ ये बात की थी, जब तक हम आपको नहीं जीतेंगे हम लाहौर छोड़कर नहीं आएंगे। उन्होंने बोला था मैं पसंदीदा हरीफ समझता हूँ, अगर वो लाहौर अगर नहीं आ सकते तो मैं लाहौर से बैठ के चिन्नी के साथ। मेरे वो भाई हैं, सारे भाई हैं लाहौर वाले। अच्छा। जो जो शौक़ करना चाहे उनको वेलकम है। पता नहीं, मैं अगर कोई लाहौर का ही आएगा तो सिर्फ उससे शौक़ करूँगा, बाकी शायद पता ना करूँगा मैं। ठीक है, अगर वो चिन्नी में आते हैं, अगर लाहौर वाले चिन्नी में आना चाहें, जी, मेरे वो काबिल एहतराम है। उनको अल्लाह के फजल करम से ऐसी मेहमान नवाजी हम करेंगे कि उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलेगी। अगर वो हमारे पास आते हैं, क्योंकि वो हमारे मेहमान हैं और हमारे भाई हैं। ठीक है, कभी उनका दिल करे कि हम चिन्नी जाके शौक़ करते हैं, उनको छत्ते भी उनकी पसंदीदा मिलेंगी। देखो कबूतर तो उन्होंने अपने उड़ाने हैं, हमारे ऊपर तो पाबंदी थी कि हमने कबूतर सिर्फ अपने उड़ाने हैं। जी जी। लाहौर में ना कबूतर हमने अपने उड़ाने, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने ही कबूतर उड़ाए। उनका होम ग्राउंड था, हम इधर से गए हैं, ठीक है ना, उनका होम ग्राउंड था। देखो यार, मैं उधर 1.5 महीना लास्ट गया हूँ, 1.5 महीना या 2 महीने के करीब पहुँचा हूँ। ठीक है, तो सारा साल घर रहे, कभी गया आ गया, 2 घंटे बैठा, 3 घंटे बैठा आ गया, ये बड़ा मसला होता है। जो घर में अपने 24 घंटे कबूतरों में रहे ना, वो और कबूतरबाजी होती है। जो ऐसे 2 घंटे की कबूतरबाजी में बहुत फ़र्क आता है।
15 दिन मुझे लगे अपने कबूतरों को समझने में कि ये कौन सा आ रहा है, मतलब नहीं ना देखे कभी, जाता है ना नहीं ना होता, जब बीच में घुसोगे तब पता चलेगा ऊपर से कौन सा आ रहा है फलां आ गया। मतलब ये होता है कि जब आपने 200-250 कबूतर निकालना है ना, उस वक्त आप तो आए नए, हम तो मेहमान की तरफ गए हैं ना जी। तो फिर वो शौक किया, वो कबूतरों को पकड़ा, हाथ में लाया, 15-20 दिन लगे हुए कबूतर समझते। उस्ताद जी, लाहौर जाने का जो फैसला था आपका, क्या लगता है आपको, वो ठीक था या गलत था? जिस वक्त मैंने फ़ैसला किया था ना, मेरी समझ में ये फ़ैसला ठीक था। शौक़ की ये थी कि बेहतरी के लिए हम जा रहे हैं, जी जी, शौक़ ज़्यादा परवान चढ़ेगा। मगर मुझे पंजाब के तमाम उस्तादों ने मना किया था, सीनियर उस्तादों में, जिसमें राजा इफ्तिखार काका साहब, मीनवाल साहब और भी बहुत सीनियर नाम है, उन्होंने मना किया था कि आपका शौक़ तोड़ नहीं चढ़ सकता। ज़रा मैं एज में इनसे वैसे भी छोटा हूँ, उनका तजर्बा मुझसे ज़्यादा था। तो मैंने कहा भाई, मैंने जो कहते हैं ना, जो बात की है पूरी करनी है, कि हमने शौक़ करना है, ज़ुबान दी हुई है। लेकिन क्या अब रिग्रेट? भाई थे सारे, बड़ा अच्छा मॉल बना हुआ था। आपको पता है कि हमने जज भी उनको ही माना हुआ था, भाई चेयरमैन साहब को। जी जी, हमारे जज भी हुई, शौक़ भी हुई करेंगे, अगर वो ख़राबियाँ कुछ पैदा होगी। जब शौक़ ख़त्म हुआ ना, उस वक्त मुझे इस चीज़ का बहुत एहसास हुआ कि हमने अपनी ज़िंदगी के 1.5-2 साल जो है ना वो ज़ाया कर दिया। शौक़ भी पूरा नहीं हुआ और वो मज़ा भी नहीं आया, और जो मामलात चले हैं बहुत गलत हुआ। ज़ाहिर सी बात है, घर से दूर होना सबसे बड़ा जो है ना, जो ये हर चीज़ जो होती है ना वो मैटर नहीं करती, शौक़ को मुकम्मल होना चाहिए हमेशा। उसके बाद मुझे फ़ैसला लगा कि मैंने गलत किया था, पहले तो नहीं लगा। जी जी, मुझे सब उस्तादों ने मना किया था कि आपका ये फ़ैसला बहुत गलत है लाहौर जाने का, मतलब जो बातें वो करते थे। तो मैंने कहा नहीं भाई, मेरा फ़ैसला, मैंने जाना ही जाना है। तो अब पछतावा हो रहा है इसका? अब जब शौक़ मुकम्मल नहीं ना हुआ, उस वक्त फील हुआ कि मेरा कदम गलत था। क्योंकि घर से भी दूर रहे हैं आप। घर से दूर की कोई बात नहीं, शौक़ अच्छा हो जाता है, इतना सफ़र होता है, आना जाना मुश्किल होता है। साल में बड़े काम का पता नहीं कितने छोड़ के, अपने वो छतें मुकम्मल नहीं की, सारा कुछ छोड़ छाड़ के चले गए, काफ़ी काम है, अब फिर 1 साल लगेगा। ये मामला थे, उसमें जब नहीं मुकम्मल हुआ तो उस वक्त दुख लगा, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख लगा। फैसला गलत सही का नहीं होता, जब हमने ज़बान करी थी गलत होता सही होता, हमने पूरी करनी थी, सिंपल सी बात है। हमने उनको कहा था कि हम आपके पास आएंगे, शौक़ करेंगे, जब तक आपको जीतेंगे नहीं हम नहीं छोड़ कर आएंगे। ये हमारा गलत समझे या सही समझे, ये हमारी उनके साथ ज़बान थी और हमने अपनी ज़बान की पासदारी की है। कबूतरों की भी, मतलब कबूतर भी 1 साल अपनी छत और पीछे चली गई, ज़ाहिर बात है। जैसे आप अभी बता रहे थे कि असू का जो सीज़न है उसमें इतनी तैयारी नहीं हो सकी है, मतलब तैयारी नहीं, आगे जेठ की भी मुश्किल हो जाएगी, टाइम तो रहता है, मगर वो जो तैयारी थी, वो कबूतर 1 साल के बाद ना आपके पास बच जाते हैं 30-40-50 कबूतर। अब मेरा उधर पता कितना कबूतर बचा था, 139 कबूतर। बाजियाँ अब ख़त्म हुई, 139 कबूतर बचा था, जिसमें 10 कबूतर में लाया था और बाकी सारे हाजी साहब के पास छोड़ाया था। सही है, ठीक है, हाजी साहब हमारे भाई थे, मैंने कहा आप उड़ाएं कबूतर, बस कबूतर क्या ले जाने, आप ही रखें, आप उड़ाएं। मतलब 2 साल वो कबूतर हो जाएंगे और उनके बाजार अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मेहनत अच्छी हो जाएगी, 2 कबूतर और उड़ जाएंगे। और अगर वो मेरे पास 128-129 कबूतर, अगला साल भी बड़ा इजी गुजर जाना था। ऐसे ही 2 साल हो जाने थे। अब जो आपके हरीफ है आने वाले, उन्होंने भी ये सुनना ही, ज़ाहिर सी बात है, वो सुनते रहे, कोई मसला नहीं है। मैं इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी अपनी छत कंप्लीट कर रहा हूँ, उधर मैं इंशाल्लाह शौक़ करूँगा। अभी तैयारी शारी उधर से करूँगा इंशाल्लाह, 2-2.5 महीने के अंदर मैं कबूतर फार्म पे शिफ्ट करना शुरू कर दूँगा। अस्सू के बाद मैं कबूतर छोड़ना शुरू कर दूँगा। असल चेतर होता तो चेतर बच्चों का उड़ाता, मगर चेतर हो गया कैंसल। अब अक्टूबर में बच्चे उड़ते हैं, तो इंशाल्लाह कोई नहीं, साल आधा में कबूतरबाजी शुरू हो जाएगी, टाइम है ना, कोई नहीं। खैर चलें, हमारी दुआ है अल्लाह आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे, मेले से जाते रहें, अल्लाह मेहरबानी करे, अल्लाह खैर करे जी। अच्छा उस्ताद जी, एक क्लिप मेरे सामने गुजरा था, जी, उसमें से एक लाहौर के उस्ताद है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो बोल रहे थे कि 11 रोज़ा जो टूर्नामेंट होता है उसमें लाली बरादरान क्यों चैम्पियन नहीं हो सकते। यार ये बात ये है कि हम लाहौर 11 रोज़ा पंजाब के चैम्पियन हैं, क्यों नहीं है? 2024 के चैम्पियन पंजाब हैं। और तुराब हैदर का टूर्नामेंट देख लें, अच्छा, उसमें होते हैं मुख्तलिफ टूर्नामेंटों में, कोई आगे होता है, कोई पीछे होता है, चैम्पियनशिपें होती हैं। 7 रोज़ा मैं 4 दफ़ा हुआ हूँ चैम्पियन। ये सवाल तो इतना बड़ा नहीं है, मतलब बात होती है परफॉर्मेंस की, मुकाबलों की। जो चैम्पियन, अब वो बंदे भी खेल रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो, जो कभी भी एक दफ़ा चैम्पियन पंजाब नहीं हुए।
शौक होता है, मगर चलो अल्लाह ताला ने हमें 4 दफ़ा चैम्पियन बनाया, जेट का चैम्पियन, ये उसका ज़ात की मेहरबानी करम नवाजी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक है। अच्छा उस्ताद जी, मलिक मुंतज़र मेहदी साहब की परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? बात ये कि अच्छी कबूतरबाजी, को डेंजरस कबूतरबाजी नहीं हुई, कि बड़ी डेंजरस कबूतरबाजी, असल में उनका होम ग्राउंड था सबका। होम जो ग्राउंड का वो स्कोप समझते थे ना, जो वो समझते थे जी यहाँ पे आएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मतलब उनके साल पूरा उधर ही रहे ना, अपने कबूतर छोड़े, और दुनिया पूरी से कबूतर लिए हैं, सब ने लिए, उड़ाए। मतलब हमें तो ये पाबंदी भी थी, आपने अपने ही कबूतर उड़ाने हैं, ये भी थे। मतलब मेरी बात से कोई नाराज ना, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि उनका काम था हमें छक्का मार देना। जिस तरह वो समझते थे कि वहाँ पे कबूतर नहीं उड़ेंगे, उनका काम था हमें छक्का मार देना। उस्ताद जी, अस्सू 2026 जो आ रहा है, जी, इसकी जी। तैयारी कैसे जा रही है? तैयारी यार टाइम ही कोई नहीं, काम इतने छोड़ के गए हुए हैं, वही अभी कंप्लीट नहीं हो रहे, वो फार्म वाली छत कंप्लीट, अभी उधर लगा हुआ हूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश है, ये लड़के हैं, इनको कहा है कि कुछ तैयारी शैयारी करें, को रौनक मेला लगा लेंगे वहाँ फार्म से, इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट टाइम शौक उधर से करूँगा। उस्ताद जी, अस्सू आ रहा है, कोई दाना पानी के बारे में बताया कि किस तरह का दिया जाए कि पर वगैरह अच्छे हैं? दाना पानी इनको हमेशा मोटा ही दाना खिलाना चाहिए, अस्सू हो, चेतर हो, जेठ हो, मोटा दाना खिलाना चाहिए मोटा दाना मतलब? जी। चनी, गंदम, बाजरा, हल्की फुल्की देसी मक्की, ठीक है, मोट डाल लें, यही दाना होता है, सरसों डाल लें। सही है। उस्ताद जी, आपकी परफॉर्मेंस देख के ना कुछ लोग कहते हैं कि दरिया के किनारे पे बैठे हुए हैं, नमी है, ये है, वो है, जी जी। इसके पीछे कितनी सच्चाई है? सच्चाई झूठ पता है बात के, ये दरिया चनाव पता नहीं किधर से शुरू होता है और किधर जाके ख़त्म होता है, ये तो आपको भी पता है, हमें तो ये भी नहीं पता स्टार्ट किधर से और एंड इसका किधर है। जी जी। दुनिया कितनी चनाव दरिया के ऊपर बैठी हुई है, ये अगर हमारे लिए ये मसला है तो फिर तो ठीक है। अगर बाकी दुनिया के लिए ये नहीं मसला, उनको फ़ायदा नहीं देता, सिर्फ आगे इधर हमें मुझे ही फ़ायदा दे के चला जाता है, तो फिर मैं कहता हूँ दरिया की मेहरबानी। ये बातें हैं, जितनी मर्जी करवा ले दुनिया से, ठीक है, ये बयानबाजियाँ, ये यार बस ऐसे बातें ही हैं। हैं। मेरी बात से अगर ये फ़ायदा होता तो फिर बाकी चिन्होट वालों को, इन लोगों को भी मिलता। सारे पंजाब के, लाहौर के इधर शागिर्द बैठे हैं, वो क्यों नहीं चैम्पियन लगते? उस्ताद जी, ये जो पट्टी है, गुजरांवाला, सियालकोट, हाँ जी, सराय आलमगीर, जी जी, जहलम वगैरह, जी जी, इसमें किस तरह के कबूतरबाज पाए गए हैं? मतलब किस तरह के उस्ताद हैं? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं गुजरांवाला के मेहनती हैं कि उस्ताद। नहीं है? मेहनती होगा मुझे पता, अच्छे हैं गुजरांवाला के उस्ताद, बहुत अच्छे हैं। वहाँ पे शौक जो इस वक्त अरूज पे चल रहा है ना, जी। ये खारियाँ बेल्ट, गुजरात, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, मतलब ये इलाके में शौक, जेलम कर लें, सियालकोट में भी बहुत अच्छे टूर्नामेंट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, मतलब वो अरूज पे चल रहा है। हमारे इलाकों में तो टूर्नामेंट ही नहीं होते इतने। उस्ताद जी, मेहनत भी करते हैं, मेरे ख्याल से सारे ही करते हैं, जी जी। लेकिन उधर की इतना रिजल्ट नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है, सब कुछ है, उसकी वजह क्या है? यार मेन आपकी चीज़ होती है कबूतर, अच्छा। कबूतर, कबूतर के साथ फिर आपकी होती है मेहनत, फिर आपकी होती है कीमियागरी, ठीक है। अच्छा। ये 3-4 चीज़ें मिलेंगी तो आप कंप्लीट हो गए। अगर इसमें कोई एक चीज़ भी मिस होती है तो फिर भी मुश्किल पड़ जाओगे। लेकिन वो देखे ना, इस साइड पे जैसे बन्नू हो गया, ये मियाँ वाली हो गया, इस साइड पे सारी पार्टियां जो दूसरी आके बैठी हुई हैं, उनकी भी परफॉर्मेंस आ रही है, उस साइड पे क्यों नहीं आ रही है? अब क्या कह सकते हैं कि कहते हैं, यही कहते हैं कि वहाँ की मौसम हवाएँ होती है, फ़र्क होता है, मौसम की वजह से ही है। कहते हैं। अब देखो जी, हर बंदे का यही है कि खारियाँ में हवा तो चलती है वहाँ पे, ये कोई इसमें झूठ वाली बात नहीं है। सियालकोट और हवा होती है, मगर जो कबूतर आपके पास उड़ते रहते हैं ना, एडजस्ट हो जाती हैं, वो मौसम को जान पहचान कर जाते हैं। मतलब मौसमों का फ़र्क होता है, इलाकों का फ़र्क होता है, ऐसे में नहीं है। अब जिस है जैसे आप आगे जाएंगे, इस्लामाबाद क्रॉस करेंगे, मौसम में फ़र्क पड़ जाएगा, इस्लामाबाद में फ़र्क पड़ जाएगा आगे। मतलब उनके लिए मुश्किल भी होती है, कभी हल्की से गर्मी ज़्यादा पड़ी तो बारिश आ सकती है, तूफ़ान आ सकता है, मुश्किल भी होती है। ये शौक कबूतरबाजी है कैसा है ये? इससे अच्छा शौक कोई भी नहीं है। लेकिन लोग बहुत इसके बारे में नेगेटिव सोच रखते हैं। मतलब वो लोगों के ऐसे है ना, दुनिया कभी किसी पे खुश हुई है? मतलब हर बंदा है, जो चीज़ आपको सुकून दे जी। वो आपके लिए अच्छी है, जो चीज़ आपको तकलीफ़ दे वो अच्छी नहीं है, सिंपल सी बात है। तो जी माशाल्लाह से आपने बहुत से रिकॉर्ड जो हैं वो अचीव किए हैं। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मेरे ख्याल से ना होगा जो आपने अचीव ना किया हो। क्या अभी भी कोई आपके दिल में कोई तमन्ना रहती हो, कोई किसी से बाजी जीतने की?
اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کھیلو آپ اچھے کھیلو، اس میں آپ کا ریکارڈ جو بھی ہے نا صاحب کا، دیکھو وقت کے ساتھ جنون آپ کا کم ہوتا ہے، وقت کے ساتھ جنون کم ہوتا ہے، آپ کی مصروفیات بڑھ جاتی ہے، آپ اتنا ٹائم نہیں دے سکتے، اس میں آپ کا رزلٹ کم ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ کچھ پلیئروں کو پتہ بھی ہوگا اور کچھ آگے بھی ان کو پتہ چلے گا۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ ایک بندے کو جنون ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ 24 گھنٹے کبوتروں میں ہوتا ہے، بعد میں اتنا ٹائم اس کے پاس نہیں ہوتا، اپنے کام میں بیزی ہو جاتا ہے، اور وہ شوق میں پھر رزلٹ کم ہو جاتے ہیں۔ باقی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کھیل کو جتنی دیر کھیلوں اچھا کھیلوں، ہار جیت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور رزلٹ اچھا آنا چاہیے، اپنی محنت اچھی کریں، شوق اچھا کریں۔ مجھے اچھے کبوتروں کا بڑا شوق ہے، اچھے کبوتروں کا بڑا شوق ہے۔ اچھا استاد جی، آپ نے کہا اچھے کبوتروں کا شوق ہے، جی مطلب جو نئے نوجوان اس میں آ رہے ہیں جی جی اتنی انہیں پرکھ نہیں ہے اور وسائل بھی کم ہے، کیونکہ جیسے حالات چل رہے ہیں وسائل بھی کم ہے، انہیں شوق بھی پورا کرنا ہے، کوئی شارٹ سی ٹپ دے دینا اچھے کبوتر کی۔ اصل میں یہ جو وقت چل رہا ہے نا، جی جی سچی بات تو یہ ہے کہ یہ وسائل کم والے کسی بھائی کا شوق نہیں رہا، مطلب بات کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، ایک بندہ غیر مناسب سی بات ہے، حقیقت یہ ہے۔ اب کوئی 20 25 30 ہزار سیلری والا یا 50 ہزار وہ کیسے شوق کرے گا؟ ایسا اب ان کے خرچہ 2 لاکھ روپے تو آپ کو منتھلی پڑتا ہی پڑتا ہے، 1.5 2 لاکھ پڑتا ہے، آپ کے پاس لڑکے بھی ہوتے ہیں، ان کا دانا پانی ہوتا ہے، اب یہ معمولی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ لیکن استاد جی لوگوں نے پھر بھی شوق رکھا ہوا ہے، بالکل، پیسے بھی لگا رہے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، اپنا شوق انہوں نے رکھا ہوا ہے، زندہ رکھا ہوا ہے، اور رکھنا بھی چاہیے۔ چند کبوتر رکھیں، اچھے رکھیں، جیسے مرتے جی بے شک پکڑ کے جمع کر لے اچھے اچھے، جو شام کو پکڑے جائے وہی رکھ لے، اچھا پکڑ کے شام کو ظاہری بات بیچارے اور نہیں پرچیز کر سکتے، تو انہوں نے یہی کرنا ہے، جو پکڑ کے کبوتر شام کو گرتے ہیں، شام کو وہی ہوتا ہے جو اچھا ہوتا ہے۔ آپ کو ٹپ دے دینا شارٹ سی کہیں، مطلب سٹرکچر کے لحاظ سے، اس کے پروں کے لحاظ میں سے۔ آپ کو ایک دو کبوتر دکھا دیتا ہوں، اب اتنی بریکی کا مجھے بھی نہیں پتا۔ عثمان ہے یار، کوئی اڈے اڈائے کبوتر ہے نا وہ بخا دیو، جیڑے کبوتر ہے نا وہ بخا دیو، پکڑ پکڑا بخا دو، 2 3 اور کبوتر بخا دو، پہلے ریکارڈ یافتہ کبوتر کھڑے وہ بخا دے، چلو شوق ہو جائے گا، دیکھ رہے ہیں وہ، کیونکہ دیکھنے سے اور فرق ہوتا ہے جی جی سب کچھ۔ استاد جی آج کل میڈیا پہ ہر کوئی اپنے آپ کو استاد کہتا ہے، آپ کی نظر میں اصل استاد کی پہچان کیا ہے؟ اس میں کیا کس طرح کے مطلب کیا کہتے ہیں صفات ہوتی ہیں کہ جس سے پتہ چلے کہ اصل استاد وہ ہوتا ہے جس میں ہار کا حوصلہ ہو، ہار جانے کا حوصلہ ہو، ہار جانے کا حوصلہ ہو، حوصلہ رکھتا ہو، کھیل کو کھیل سمجھے، کھیل کو کھیل سمجھے، جو مطلب برے وقت ساتھ ہوتا ہے نا، اچھے کے ساتھ برا وقت بھی ہوتا ایسا ہے، ہی۔ تو اس کو حوصلے میں رہنا چاہیے، جیت کر بھی اور ہار کر بھی۔ استاد جی ہم وہ بات کر رہے تھے کہ نوجوان کے لیے اب کچھ لوگ نئے آ رہے ہیں، اب انہوں نے اسوں کا سیزن بھی کرنا ہے، جی جی پر پٹائی کی ہوئی ہے، جی جی، تو وہ کچھ موسم ایسا چل رہا ہے کہ آنکھیں خراب ہوتی ہیں۔ وہ اصل آنکھیں خراب ہونے کی وجہ پتہ کیا ہے؟ یہ موسم میں، جس موسم میں نمی شروع ہو جائے گی نا، جی نمی شروع ہو جائے گی، اور یہ آج کل کبوتر کریز پہ لگے ہوتے ہیں، جی جی ان کا جو بور ہوتا ہے نا، بور ہوتا ہے وہ کھڈوں میں کونوں پہ نکل جاتا ہے، وہ پر جھاڑی کرتے ہیں نا، پر جھاڑی کا موسم ہے، وہ ہوا میں اڑتے ہیں، اور موسم میں نمی آ جائے تو پھر زکام کا معاملات ہو جائے۔ خشک موسم میں زکام کم ہوتا ہے، اس نمی والے موسم میں زکام زیادہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا کوئی علاج بتائیں کچھ؟ اس کا یہ ہے کہ سب سے زیادہ آپ اپنے کھڈوں کی صفائی رکھیں، صحیح، آپ کے کھڈے صاف رہیں گے نا، وہ بور وغیرہ نہیں ہوگا، کبوتروں کو نلائیاں وغیرہ دیں، کھڈے 2 3 دن اپنا دفعہ صاف کریں۔ لیکن اگر ہو جائے تو اس کے بعد کیا کیا جائے؟ ریفلاکس ٹیبلٹ اچھی ہے، فلاکس، ریفلاکس وہ ٹیبلٹ اچھی ہے، وہ دے لیں، کیومک ٹیبلٹ دے لیں، ٹھیک ہے، اور ڈراپس بنا کر وہ دے لیں، جینٹاکومیسون انجیکشن لگا لیں، 2.2 بس یہی کچھ ہوتا ہے یار۔ اے لایا جی جی، یہ لے۔ استاد جی آپ کی زندگی کی سب سے بڑی یادگار اڑان کون سی رہی ہے، پرواز کون سی رہی ہے؟ میری زندگی کی ایک دفعہ 2024 میں ایک اڑان تھی ایسی، اور ایک تھی 2019 میں۔ وہی کیمرہ پاس لے آئیں۔ یہ کبوتر بلاؤ